So, folks, let's start our session for today. This is the last session for your contemporary economic issues, given you have your exam tomorrow. Now, what we will be covering is that we will cover two chapters from the economic survey, and whatever doubts that you might have, I'll address those doubts as well, exam related or how you should write, whatever comes to your mind, you can ask me. We'll try to have this session wind up in another 60 to 90 minutes so that you have some time spare to study on your own. The first thing that I would like to cover for this particular session is prices and inflation. Now, this is an important chapter for your course. I hope that you have already studied it. The purpose is to just emphasize certain important aspects of this particular chapter, and also to specify that how do you read this particular chapter once you get into a competitive space, appearing for or preparing for civil services. Now first of all, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन का कंसेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या है इन्फ्लेशन का कंसेप्ट. नाउ, in case when we talk about inflation, usually inflation in India is seen by two parameters. One is CPI, the other is WPI. इसी को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं क्योंकि ये हेडलाइंस में मेंशन होती है. और हेडलाइन में कौन सी इन्फ्लेशन मेंशन होती है? CPI का एक वर्जन होता है विच इज़ कॉल्ड एज CPI कंबाइंड. उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं इंडिया के अंदर. उसको हम कई बार रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. इसी को हम कई बार रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि दिस इज द इन्फ्लेशन दैट we as consumers at retail level when we buy or we are facing. So this is also called as retail inflation, headline inflation, CPI combined. उसके बहुत सारे और फ्लेवर्स भी होते हैं. there are different flavors of CPI. We will see what all are the different flavors, but the main important flavor is CPI combined. Now the other is WPI, which is wholesale price index, and this is a producer's inflation as compared to consumers. ये producer का है. Now, the way that inflation is seen in any country is defined by a particular basket. ऐसा नहीं है कि आप पूरी दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स उठा के ले लोगे और फिर कहोगे कि हम इन्फ्लेशन देखना चाहते हैं. You have a defined basket of goods and services. Now, very important point, and ये कई बार सिविल सर्विस में पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन. WPI के अंदर सर्विसेज नहीं होती और CPI के अंदर सर्विसेज होती हैं. Now, how do you define inflation? First of all, you have to define a basket of goods. Now, what is this basket of goods and services? You have to have a reference of certain goods, that these are the goods I want to see for checking the inflation. Now, you in both in CPI and in WPI or in general for inflation, you have a basket of goods and you track the movement of the prices. And how do you track the movement of prices? Generally, what you see in the newspapers, it is always quoted as Y on Y. What is this Y on Y? Year on year basis. Now, suppose a particular commodity. We expected the inflation to be really high, and this month's inflation CPI का figure, by the way, every month 12th और 13th को आता है inflation का. तो आज inflation का already figure आ चुका है. Now, और एक महीने पुराना आता है. तो मई के अंदर अप्रैल का इन्फ्लेशन आया. तो अप्रैल का इन्फ्लेशन अगर 7% प्लस जो चल रहा है 7.79 है. सो इफ़ यू सी द प्रिंट ऑफ इन्फ्लेशन, तो ये बोल रहा है 7.79, 8% मान लेते हैं. 8% इन्फ्लेशन. इस 8% इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इस 8% इन्फ्लेशन का मतलब है कि ऑन एन एवरेज अगर आपको कोई बास्केट ऑफ गुड्स लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर, if a representative basket of goods was costing you 100 rupees, this year, this is 2021, in April 2022, this basket of goods will cost you 108 rupees. This is the 8% inflation that you are seeing. This is the overall 8% inflation in CPI combined that you are seeing, which is representative of India, and this is a year on year basis. As compared to April of 2021, what is the inflation that you are seeing in April of 2022? Now,
सिमिलरली WPI इन्फ्लेशन इज ऑल्सो सीन, बट WPI का जो इन्फ्लेशन देखा जाता है वो होलसेल लेवल पे देखा जाता है, एंड ये जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं और ये जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं वो डिफरेंट होंगे. एज यू कैन सी, फॉर अ कंज्यूमर फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, फ्यूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट फॉर अ प्रोड्यूसर फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्राइमरी कमोडिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी. सो you can see that the kind of consumption items of the kind of basket of goods which a producer consumes and the weights associated with it will be different from the kind of basket of goods which a consumer will face. So therefore these two baskets will be different, and therefore you will also see that the inflation reflected by these two baskets are quite different at times. क्योंकि अगर हम लास्ट एक साल में देखो तो देखो किस चीज़ का इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है. एक अगर पिछले पिछले 2-3 महीने में देखो तो एक हमारा फ्यूल का इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है, प्राइमरी कमोडिटीज़ का इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से. ऑलरेडी सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन चल रहा था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था. सो व्हाट वी आर सीइंग इज दैट देर इज़ अ ह्यूज इन्फ्लेशन ऑफ 12 to 13% being reflected in WPI because of the difference in weightage as compared to CPI, which has different kinds of weight. Usually in my class I show my entire class the details of CPI and WPI. Maybe the last part of the reading I can probably show you that differentiation, how you see the difference between CPI and WPI. So this is the basic concept that you need to understand for इन्फ्लेशन. विदाउट दिस कंसेप्ट यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन क्या है और ये प्राइसेस इंक्रीज क्या हो. नाउ द टारगेट फॉर अस, नाउ व्हाट वी हैव इन आवर फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. So CPI, yeah, CPI, Ananya, CPI comes in many flavors. So CPI comes in something like as CPI rural, CPI urban, CPI combined, which is a combination of rural and urban. Then CPI also comes in agricultural labor, industrial workforce. तो बहुत सारे फ्लेवर्स के अंदर CPI आता है फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट यू कैन से डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. तो ये रूरल सेक्टर को डिफाइन कर रहा है, ये अर्बन को कर रहा है, ये पूरे इंडिया को कर रहा है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज हेडलाइन. ये एग्रीकल्चरल लेबर को दिखा रहा है, ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स का बास्केट दिखा रहा है. सो द बास्केट चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट यू वांट. Now, again, we'll not get into the detail because I do teach this all of this in detail कि कौन publish करता है, WPI कौन करता है, ये सारे figures कौन करते हैं. But that is more of getting into competitive space, which is not our aim. But I'll tell you where you will find it. So now with all of this, another thing that you need to understand why inflation is extremely important parameter to cover. बिकॉज सी इन्फ्लेशन अगर 3 से 4% अगर इन्फ्लेशन है दैट्स गुड. अ मैन्युफैक्चरर शुड एक्चुअली हैव सम काइंड ऑफ इंसेंटिव दैट एवरी ईयर आई विल फेस सम काइंड ऑफ इंक्रीमेंट इन माई प्राइसेस, बिकॉज उसका अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो आपका लेबर है या लैंड है, वो सारे भी चाहेंगे कि यार हर साल मेरी इनकम थोड़ी सी इंक्रीज़ हो. तो उसके जो फैक्टर मार्केट है, येस द सेशन इज़ बीइंग रिकॉर्डेड. सो उसकी जो फैक्टर मार्केट प्राइसेस हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, एंड देयरफॉर अ प्रोड्यूसर विल आल्सो एक्सपेक्ट कि अच्छा मेरा भी थोड़ा सा मार्जिन बढ़ जाए, प्राइसेस बढ़ जाए. टू समवेयर अराउंड 4% इज द स्वीट स्पॉट फॉर इन्फ्लेशन टू बी देयर. So in India, we have a mechanism of inflation targeting which is called as flexible inflation targeting, and the Monetary Policy Committee. So there is this committee called as Monetary Policy Committee, in which there is representation from academia, as well representation from RBI, and it is headed by the RBI's governor. So यहाँ पर ये जो बॉडी है, ये बॉडी इंश्योर करती है, दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इंश्योर्स दैट इन्फ्लेशन इज मेंटेन्ड, देयर इज अ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, एंड इन्फ्लेशन इज मेंटेन्ड बिटवीन 2% to 6%. This is the band in which inflation is to be kept. Right now, when you are seeing inflation at 7.8% or 7.9%, that means ये upper band जो है वो breach कर गया है. So now with RBI has its primary goal or primacy with keeping
inflation in check and keeping prices in check. However, you have to also understand RBI के हाथ में सिर्फ डिमांड साइड मेजर्स होते हैं, RBI के हाथ में सप्लाई साइड मेजर्स नहीं है. RBI सिर्फ मार्केट में पैसा इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, उसकी वजह से वो सिर्फ एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट कर सकता है. It has no control whatsoever on aggregate supply, which is dependent on multiple factors, sometimes exogenous to government of India, sometimes endogenous to government of India. For example, infrastructure अच्छा होगा तो आपका इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा. आपका टैक्सेशन और आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा तो अपने प्राइसेस अपने आप कम हो जाएंगे. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होगा तो आपके अपने आप प्राइसेस बढ़ जाएंगे. आपकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं होंगी तो आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे. सो मानसून अच्छा नहीं हुआ तो आपके प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे. So there are exogenous factors and endogenous factors with respect to prices as well. We'll just talk about that as well. Now, this is the mandate of MPC to maintain this particular inflation in this range, and if it's not able to do so, then MPC will have to tell to the government of India that why this inflation target is not being met, and when and how will it meet the inflation. So if you have seen the out of cycle monetary policy decision that happened last week, in which RBI had raised the repo as well as RBI has raised the CRR. So in what was that, the reason was that RBI knew that inflation is going out of hand. I'll tell you in monetary policy why inflation is going out of hand, because you have pumped in too much of liquidity, and there is not enough sufficient output being created. Therefore, वो जो फिशर का argument है that inflation is always a monetary phenomena, that is happening in not just in India, across the world. So there's too much of liquidity in the market which led to this inflation, and therefore now RBI is trying to suck out this amount of extra liquidity from the market. All the different kinds of variables we'll talk in the other chapter. So this is the general framework of inflation that you need to understand. Now let's understand 2-3 more concepts. Let's first read through the main aspect of the chapter, and I'll explain you 2-3 more concepts, important concepts. Now, inflation has been increasing in the latter part of 2000. So this survey talks about 2021-22. In the latter half of 2021-22, we are seeing that inflation is picking up. Global inflation is picking up because of the fact कि मार्केट में आपने पैसा इतना सारी एडवांस कंट्रीज ने क्या किया, दे हैड पुट सो मच ऑफ मनी इनटू द मार्केट, एंड नाउ देयर इज दिस रिसर्जेंस ऑफ डिमांड. एकदम से वो पैसा मार्केट में आ गया है और अब लोग डिमांड कर रहे हैं, एंड देयर इज ऑलरेडी मनी इन द मार्केट. सो देयरफॉर that is leading to inflationary expectations in the market. So because of stimulus spending on major economies with pent up demand boosting consumer spending has pushed up inflation. So demand की वजह से ये inflation increase हो रहा है, both in emerging economies as well as advanced economies. On the other hand, there are still these challenges that are there. There are these challenges that are there on the supply side. You have energy का shortages, for example अगर आप coal का देखो, in case of India, food का shortage चल रहा है, fuel non food commodities का shortage चल रहा है, input prices का shortage चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं for example China bans exports या एकदम से strict lockdown में चला जाता है कभी कभार, तो उसकी वजह से कई बार supply constraint चल जाते हैं, global supply chains ख़राब हो जाती हैं. Raising freight cost, मैंने आपको first chapter में explain किया था कि why and how global supply chain disruptions are increasing the freight cost in the world. So because of all of these reasons, there is this supply side bottlenecks and supply side pressure on prices, and from the demand side, because you have pushed in excess supply of money, therefore this mismatch of demand and supply is creating inflationary expectation and inflation worldwide. And India is no in India this is India is no exception to this. India is also facing similar kind of pressures. Now on domestic front अगर आप देखो तो हमारा इन्फ्लेशन जो है, अगर हम इस पीरियड का देखें अप्रैल टू दिसंबर, विच इज़ बेसिकली योर 3 क्वार्टर्स. हम इकोनॉमी को हमेशा क्वार्टर्स में देखते हैं. कौन कौन से क्वार्टर? Q1 इज़ यूजुअली योर अप्रैल, नॉट यूजुअली, इट्स ऑलवेज योर अप्रैल, मार्च एंड April, May, June.
then Q2 July, August, September, and Q3 यार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो ये जो 3 क्वार्टर हैं उसके अंदर इन्फ्लेशन दिखा रहे हैं कि मॉडरेटेड है. बट इफ़ यू सी इन्फ्लेशन इन जनरल उसके बाद बिकॉज ऑफ द रशियन वॉर एंड बिकॉज ऑफ द ओपेक प्रॉब्लम्स एंड बिकॉज ऑफ द बेसिक मेटल्स की जो शॉर्टेज हो गई है, बेसिक कमोडिटीज़ की जो शॉर्टेज हो गई है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन अब फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है. देन WPI इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं. WPI इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई था बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस. एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट दोनों का वेटेज जो है वो डिफरेंट होता है. WPI के अंदर वेटेज डिफरेंट होता है, CPI के अंदर वेटेज डिफरेंट होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी आर सीइंग इज दैट देयर इज़ अ ह्यूज इन्फ्लेशन दैट वी आर सीइंग इन WPI एंड CPI. सो CPI एंड WPI के बीच में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस दिख रहा है. ये 12.5% दिखा रहा है, ये 6% दिखा रहा है, ये 5.5% दिखा रहा है. तो ये डाइवर्जेंस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि दोनों के वेट्स डिफरेंट हैं. इसके अंदर वेटेज इसके अंदर हर कमोडिटी का वेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम CPI के अंदर. So this was attributable to pickup in economic activity, sharp increase in crude oil and other import and high freight costs. Therefore, there is a divergence between CPIC and WPI, and which may, remains to be a matter of debate. ये आपका इन्फ्लेशन का है. जस्ट गो यू कैन रीड इट थ्रू कि क्यों इन्फ्लेशन हो रहा है. सप्लाई साइड मेजर्स, ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि सप्लाई साइड मेजर्स भी हैं और डिमांड साइड मेजर्स भी हैं जो इन्फ्लेशन को बूस्ट कर रहे हैं. सिमिलरली इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर भी हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं. नाउ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हेयर टू कवर इज़ another I mean just in case when you prepare, this is important. I think Ananya you had asked, you can go through this part कि कौन किस चीज़ों का इन्फ्लेशन देता है. there is industrial workers, agricultural labor and rural labor. CPI ये 3 होता है. और then you have this CPIC as well. Now let's come to the other important part. There is something called in inflation, there is something called as core inflation and you have non-core inflation. ठीक है. अब what is this core inflation? I was telling you about there are certain parts in this inflation in your basket of CPI which is in your hand and some part is not in your hand. Now what is in your hand and what is not in your hand? Now CPI can be divided into core and non-core. Now what is core inflation? Core inflation is CPIC inflation minus food inflation minus fuel inflation. Now why is it called core inflation? That's the important point कि इसको हम core inflation क्यों बोलते हैं. देखो, कंज्यूमर प्राइस के इंडेक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बास्केट होती है फूड का काफ़ी बड़ा वेटेज होता है. एंड फ्यूल का भी थोड़ा बहुत वेटेज होता है. आई टॉक अबाउट दिस वेटेजेस एज वेल. बट these two items are not in the hands of government of India. Why food inflation is not in the hands of government of India? Because in India 55% of our agriculture is rain fed. What do you mean by rain fed? That we do not have irrigation facilities. We are dependent on Indra Devta. दैट अगर बारिश होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो एग्रीकल्चर ठीक नहीं होगा. सो देयरफॉर फूड इन्फ्लेशन इज काइंड ऑफ अ गैम्बल विद मॉनसून. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द इशूज इन केस विच इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ RBI और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सिमिलरली फॉर फ्यूल इन्फ्लेशन 85% of our demand, 85 to 90% of our fuel demand is imported, which essentially is in the hand of OPEC or OPEC plus countries. 90% वर्ल्ड का डिमांड यहाँ से आता है. सो देयर सप्लाई यहाँ से आता है. तो देयर फॉर दिस प्राइस ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो नॉट इन आवर हैंड्स. देयर फॉर वंस यू रिमूव दीज टू आइटम्स फ्रॉम इन्फ्लेशन यू गेट कोर इन्फ्लेशन. ठीक है. और नॉन कोर बेसिकली क्या हो गया? बेसिकली फूड और फ्यूल जो इन्फ्लेशन होगा वो नॉन कोर इन्फ्लेशन हो गया. एक्चुअली नॉन कोर बोलना ही नहीं चाहिए हमें कुछ भी. सिंपल कोर इन्फ्लेशन आपको पता होना चाहिए. एक हो गया आपका CPIC और एक हो गया आपका कोर इन्फ्लेशन. ठीक है.
So CPIC is also called as headline inflation or retail inflation. Core inflation, as I've told you, is CPIC minus food inflation and fuel inflation. Now कई बार हम फूड इन्फ्लेशन को अलग से भी देखते हैं, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जब हम देखते हैं तो सिर्फ फूड आइटम्स नहीं आती, उसके अंदर मैन्युफैक्चर्ड फूड आइटम्स भी आ जाती हैं, जिनका अगर हम वेट ऐड करें तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, अराउंड 45% वेट हो जाता है पूरी बास्केट का। अगर आप इसका देखो, ये देखो, सी दिस गाइस, बाय द वे दिस इज 2012 बेस, चलो ठीक है कोई बात नहीं। Can you see this is the weight of all the items in CPI? टोटल वेट 100 होगा। एंड हमारी मेजर आइटम्स क्या होती हैं? हमारी मेजर आइटम्स, कैन यू सी, फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज जो है वो 46% है। 46% जो है फूड और बेवरेजेस का वो है। देन कैन यू सी फ्यूल एंड लाइट, जिसका वेटेज जो है 6.8 है। एंड इन्होंने बाकी सारे ग्रुप्स नहीं दिए हैं for some reason. And CPI excluding food and fuel group, can you see this core written? तो core inflation का जो total weight है वो 48% है। That means 52% जो weight है वो food और fuel को मिला के है, ठीक है। So this is something that you need to see। और हम कई बार food का inflation अलग से देखते हैं, क्योंकि हम this is related to poor people। अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो दिस इज़ कम्प्लीटली एंटी पुअर। तो गवर्नमेंट्स फूड इन्फ्लेशन को बहुत केयरफुली देखती हैं कि उसको मैनेज करना है, और किस तरीके से मार्केट में अगर फूड इन्फ्लेशन हो रहा है तो हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं सप्लाई साइड के। डू वी नीड टू सप्लाई बफर स्टॉक से हम फूड निकालें और मार्केट में सप्लाई करें, कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लगा दें कि हम स्टॉकिंग और ये ब्लैक मार्केटिंग बंद कर दें। सो व्हाट काइंड ऑफ, या इम्पोर्ट करना शुरू कर दें फूड कमोडिटीज़ का। सो ऑल ऑफ दोज पॉलिसीज़ आर डिपेंडेंट ऑन दिस फूड इन्फ्लेशन, बिकॉज दिस कैन बी अ ह्यूज इलेक्टोरल इशू। अब बाकी मैंने आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन बता दी और कोर इन्फ्लेशन बता दी। देन देर इज़ अनदर कंसेप्ट कॉल्ड एज रिफाइंड इन्फ्लेशन। सो ये CPI का ओवरऑल वेटेज, CPIC का वेटेज है, जिसके अंदर एज आई जस्ट टोल्ड यू कि हमारा फूड एंड फ्यूल का, कैन यू सी कहाँ गया, फूड एंड बेवरेजेस का 46% वेटेज ये आ गया। देन हमारा पैन एंड टोबैको एक वो है। देन हाउसिंग एंड फ्यूल एंड लाइट एक है, क्लोथिंग एक है, मिसलेनियस आइटम एक है। नाउ इफ़ यू सी दिस मिसलेनियस आइटम, तो हमने क्या बोला, व्हाट इज़ कोर इन्फ्लेशन? कोर इन्फ्लेशन इज CPIC माइनस फूड इन्फ्लेशन। दैट मीन्स आप ये वाला इन्फ्लेशन माइनस करोगे और फ्यूल इन्फ्लेशन माइनस करोगे, ये वाला भी माइनस करोगे। बट इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन, दिस पर्टिकुलर पैरामीटर कॉल्ड मिसलेनियस, हम मिसलेनियस के अंदर जाते हैं। मिसलेनियस के अंदर कैन यू सी, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, यहाँ पर और भी कुछ आइटम्स आ जाती हैं। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में डोंट यू थिंक कि फ्यूल यहाँ पर भी लगता होगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर? सो देयरफॉर अगर आप इस वाली आइटम से इन फूड इन्फ्लेशन माइनस कर लो, फ्यूल इन्फ्लेशन माइनस कर लो, एंड देन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट द इन्फ्लेशन आइटम्स, फ्यूल वाली जो आइटम्स हैं जो मिसलेनियस के अंदर दे रखा है, क्योंकि मिसलेनियस के अंदर भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दे रखा है जिसके अंदर फ्यूल लगता है। सो इफ़ यू रिड्यूस दैट ऑल्सो, मिसलेनियस वाली आइटम्स का जो फ्यूल इन्फ्लेशन है, then you come to what is called as refined core inflation. So these three concepts are extremely important for you to understand what is CPIC, what is core inflation, and what is refined core inflation. These three are important concepts for in general also, and also for your examination. See this. Conventionally, core inflation is calculated by excluding food and beverages and fuel and light groups from overall inflation. While in CPIC, major fuel items such as petrol for vehicles and diesel for vehicle have large weights. They are not included in fuel and light. They are included in the subcategory of transport and communication. और transport and communication miscellaneous group में है। तो जो आप डीजल खरीद रहे हो, जो आप पेट्रोल खरीद रहे हो, वो एक्चुअली मिसलेनियस वाले ग्रुप में है, उसको भी माइनस करना पड़ेगा। सो वंस वी रिमूव दीज टू आइटम्स वी कम टू रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन।
रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन इज दैट जो आपका कोर इन्फ्लेशन है उससे आपने पेट्रोल फॉर व्हीकल्स, डीजल फॉर व्हीकल, लुब्रिकेंट फॉर व्हीकल्स, ये तीनों चीज़ें आप रिमूव करोगे अपार्ट फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट, तो आपको मिल जाएगा रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन. आई होप दीज थ्री कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू बिकॉज दीज आर क्वाइट एसेंशियल एंड ये आपको मॉनेटरी पॉलिसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए, नॉट जस्ट इन दिस सेमेस्टर, also in your semester 6 where you will do a course called monetary and क्या था, money and financial markets. So what has been driving the inflation in the last few months? In the last few months inflation has been driven by 2-3 factors. One of the factors has been ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हेल्थ सर्विसेज, लोग ज़्यादा हॉस्पिटल जा रहे हैं, ज़्यादा कोविड हो रहा है, ज़्यादा लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं कोविड रिलेटेड, तो वो ज़्यादा मेडिसिन खरीद रहे हैं, सो ज़्यादा लैब टेस्ट हो रहे हैं, सो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, पेट्रोल पे हो रहा है, डीजल पे हो रहा है. So all of this is causing inflation, and apart from that there are certain upticks in food and beverages as well, बीच में supply chain की वजह से भी, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन हो रहा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यूल एंड लाइट, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से. सो दीज आर द फैक्टर्स इन 2021-22 at least till January of 2021-22 which was driving up the prices. See, food and beverages, miscellaneous items and fuel and light, these are the items which were contributing, और यही आपको पता होना चाहिए. Miscellaneous, food and beverages, you can read through this if you want. The last thing that you need to specifically cover for in the survey for this particular course is WPI. And now WPI का जो weightage होता है वो different होता है as compared to CPI. Can you see? WPI के अंदर जो वेटेज है उसमें प्राइमरी आर्टिकल्स का वेट 22% है, ये मेजर आइटम्स है. फ्यूल एंड पावर का 13%. रिमेंबर हमारा फ्यूल का वेटेज इन केस ऑफ CPI वॉज जस्ट 7%, यहाँ पर 13% है. मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का जो वेटेज है वो 64% है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसमें बेसिक मेटल्स लगते हैं, बेसिक कमोडिटीज़ लगती हैं, कई बार इम्पोर्ट हो रहे होते हैं, तो ये सारी जो आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कई बार एक्सपेंसिव हो जाती हैं, और यही हम देखेंगे. कैन यू सी दैट इन दी लास्ट फ्यू मंथ्स आपका फ्यूल का इन्फ्लेशन देखो कितना ज़्यादा होना शुरू हो गया. ये ईयर ऑन ईयर आपको इन्फ्लेशन दिखा रहा है, तो विच शोज़ यू कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा WPI में हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. तो बिकॉज ऑफ दीज टू आइटम्स इन जनरल, बाद में प्राइमरी आइटम्स की वजह से भी हुआ है, बट ओवरऑल WPI में ये जो 3 आइटम्स आती हैं, ये 3 मेजर आइटम्स हैं, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका 100 वेटेज आ जाएगा. सो व्हाट वी आर सीइंग इज़ दैट WPI के जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस WPI का जो ओवरऑल वेटेज है, अगर आप देखो तो ओवरऑल वेटेज जो है कहाँ गया, ऑल कमोडिटीज़ 2021-22 में 12.5% का इन्फ्लेशन है WPI में. सो विच इज़ अ ह्यूज इन्फ्लेशन रेट एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स. So this divergence that we are talking about, this divergence is because of these particular factors. WPI और उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो इसी वजह से है क्योंकि वेट्स और आइटम्स का जो है डिफरेंस है. ठीक है, ये जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है WPI एंड CPI के अंदर. सो जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ मैंने मार्क करा कि CPI जो है वो कंज्यूमर्स का देखता है, हाउस होल्ड बेस्ड कंजम्पशन पैटर्न फ्रॉम NSS. WPI जो है वो ट्रांजैक्शनल लेवल पे देखता है एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पर हमें इन्फ्लेशन दिख रहा है. एंड वेटेजेस की जो बारे में बात हो रही है क्या कहते हैं, और यहाँ पर वेटेज अलग अलग आइटम्स का अलग अलग है. आई डोंट थिंक you need to do anything else from this particular chapter. So what I have told you from this particular chapter is to understand the concept of inflation, what are different flavors of inflation, what is CPI, CPI का major trend क्या है, कौन से driving factors हैं, CPI जो CPI-C क्या होता है, core inflation क्या होता है, refined core inflation क्या होता है, food inflation क्या होता है, WPI क्या होता है, और WPI और CPI में
डाइवर्जेंस के दौरान. So these are important things that you need to understand from the perspective of this particular chapter.